Welcome everyone. Thank you for joining us for today's session. My name is Reema and I am the Research Fellow at Center for Innovation and Biodesign, PGI Chandigarh. Today we are presenting our next session, Machine Learning in Healthcare. Before we start, I would like to play one video of our center, CI Biotech. Thank you. Thank you for watching this video. Now, I would like to invite Dr. Vimal to please explain few words regarding our center, CI Biotech. Thank you. Very good afternoon to all. And I feel a lot you are able to understand from the presentation given by Ma'am Reema. And as far as the objectives and the setup of this Center for Innovation and Biodesign is concerned, actually it is the initiative taken by the Dr. Virender Garg ji, Dr. S.S. Rana ji, and Dr. Harish Kumar ji to promote the entrepreneurship and entrepreneurial culture, to promote the entrepreneurs in the biosector.
And basically, the ASMR Biodesign aims to promote the innovation in medical device, instruments, life sciences, healthcare, technologies, education, clinical research, and healthcare delivery. By creating a conductive ecosystem with the involvement of stakeholders from research institutes, government and private healthcare sectors globally. And presently, in the present activity, a number of the IITs, IIMs, and the public and private universities are the stakeholders now. So if I would like to touch the basic objectives, the fundamental objective is innovation in biodesign for medical device, instruments and technologies, including life science and other branches of healthcare for making healthcare affordable. Automated solutions and approaches for various common medical problems, and manpower trainings for researchers, clinicians, and faculty working in the area of medical sciences. Consultancy centers providing a solution to hospitals and business in the area of medical sciences. So these are some of the fundamental objectives, and other than these objectives, the basic focus is upon the developing the skills of the youth and making the youth able and quality skills based entrepreneurs. So thanks you all, and may I now request to Dr. Shivani Lalji for the brief introduction of our speaker, Dr. Harpreet Singh ji, please. Dr. Shivani. Good afternoon, everyone. Thank you so much, Dr. Vimal, for giving me an opportunity to introduce our speaker for today's session. So, for today's session, we have Dr. Harpreet Singh with us. Sir is Assistant Professor in CSE Department. He is joining us from Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala. If I talk about his achievements, so his innovation of Queen belt, that is world's first wearable belt with automatic rape detection and prevention mechanism. It was selected by AICTE as top 10 projects from India for Canada-India Acceleration Program, which was held in Ottawa. He has as Alibaba Cloud MVP in 11th batch of Alibaba Cloud MVPs, which was announced on January 8th, 2020. Also, he's a nodal officer at Smart India Hackathon 2019 and 2020. So we are glad to have you here with us, sir. Harpreet, sir. Yeah. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. So now our participants are waiting to hear from you. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Let me share my screen. Yes. Now I would like to invite Dr. Harpreet to please start the session. Thank you. Yeah. Hope my screen is visible to all. Yes, sir. So let me introduce machine learning. First of all, good afternoon, everyone. Today we will discuss the topic machine learning. I am assuming that you people have listened the word machine learning, which is a branch of artificial intelligence. There is no expectations from your side. If you haven't listened this word, I promise you that at the end of session, you people will be knowing that what is the machine learning and where we can apply it. As we know that human learn from the past experiences and machine follow instructions given by the humans. But what if human can train the machines to learn from past data? And to what if human can do act much faster? Well, that is basically a machine learning. But machine learning is a lot more than a just learning. It is also about the understanding and reasoning. So before starting the topic, let me ask you some question. You people might be saying that there is a graph in which we can see that average temperature in Bengaluru, like on x-axis, this is a year, and on y-axis, this is a temperature.
we can see that in 1980 the temperature is around about 24.5 to 25 degree. Now, can expect you that, can you answer that what will be the temperature in 2020, 2021 if we have to just see this pattern? Anyone, please? Guys, I need audience support. Please participate. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I think so. It's 27.5 Good. above. 27.5 and above. How you can able to answer this question? Sure, sir. Because the graph is rising day by day. That's why I guess. Perfect, perfect. Let me ask some more questions. This is a movie, and you have to, what you have to do, you just match these movie scenes with the below directors. This is first movie, this is second, and this is third. Now with Sanjay Leela Bhansali, which image will be matched? Third one. Third one. Perfect. With second one, Rohit Shetty? Second. Yes. Second. Second. And Karan Johar? First. Very good. Now who is he? MS Dhoni. MS Dhoni. Very good, very good. And he is ex-captain है. अगर मैं पूछूं who is Edison, अगर आपने इसकी इमेज भी देखी होगी तो वो भी आपकी माइंड क्या रिकैप कर जाएगा. So how you can able to answer this question? This is how your mind has been trained on the data. Like you people are watching movies from last many years, right? And you people are watching news. तो आपका जो mind है वो इस तरह से trained हो चुका है कि जो संजय लीला बंसाली है वो it is basically creating the horror movies, right? रोहित शेट्टी है जो fighting movies होती है वो उस तरह की movies बनाता है. करण जौहर like love themes की जो movies होती है. So this is how our mind can predict on the basis of training. Now, if the similar thing we can apply on machines, है ना? अगर मैं मशीन पे ये चीज अप्लाई करता हूं तब इसका डिसीजन क्या होगा? So let's discuss. Now, first of all, I will discuss the simple definition. It is a branch of artificial intelligence that gives computer to learn without being explicitly programmed. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग करते हैं दैट इज अ रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, राइट? लाइक इफ आई हैव टू चेक द नंबर इज इवन एंड ऑड, तो इवन एंड ऑड के लिए मैं क्या रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग करता हूँ? आई हैव टू चेक द मॉडुलस किसके साथ? 2 के साथ. इफ मॉडुलस विद 2 इज इक्वल टू 0, नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड, राइट? बट अगर मैंने एक सेल्फ ड्राइविंग कार प्रपोज करनी है, यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू अंबाला, राइट? अगर आप चंडीगढ़ टू अंबाला सेल्फ ड्राइविंग कार के थ्रू जा रहे हो, कैन रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग वर्क्स? क्या हम सेफली, क्या हम सेफली पहुंच पाएंगे? आई थिंक हमारे इंडिया में हर कोई एक्सपर्ट है, पता नहीं कौन कहां से किधर से आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है. वेयर दैट आर मशीन लर्निंग वर्क्स. तो आपने सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, वो कैसे काम करती है? वो रन टाइम सिचुएशंस के ऊपर हमारा व्हाट विल बी द रिस्पांस दैट आर मशीन लर्निंग विल हैंडल. Now the second definition, like the branch of artificial intelligence about to construct a system that learn from data. अब वेदर फोरकास्टिंग, अब अगर 10 years बैक देखते हैं तो अगर हमें कल का वेदर प्रेडिक्ट आता था कि कल इस टाइम तूफान आने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल देखते थे कि हाँ इतने बजे तूफान आएगा कि आएगा, बट वो प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी. अगर हम टुडे आज की बात करें तो उसमें हम अगर देखते हैं जो भी प्रेडिक्शन होती है हमारे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के थ्रू, so we are it is approximately accurate. If they are saying that the rain will come at 4 o'clock, then approximately in the half hour slot the rain is there. So how it is just based on the data. Now the actual definition, a computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P if its performance on T as measured by P improves with experience E. मेरे को लगता है किसी को ये समझ नहीं आया होगा, है ना? 3 Idiots मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना? आमिर खान का जो वो प्रोफेसर होता है वो क्या पूछता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन्स, है ना? तो वो मशीन की डेफिनेशन क्या इसी तरीके से सुनाता है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बना देते हैं कि किसी को समझ ही ना पाए. तो वही ये सिंपल टर्म्स में जो मैंने पहले 2 डिफाइंड में किया हुआ है कि सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड के केस के अंदर, वही हमारी उसी को हमने इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के अंदर हमने लिख दिया. तो द मेन जो मशीन लर्निंग होती है दैट कंप्लीट्स इन फर्स्ट 2 डेफिनेशंस, राइट?
तो हमने कुछ भी यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी है. आई एम सपोजिंग दैट एवरीवन इज अ लेमैन, तो वी विल डिस्कस द मशीन लर्निंग कंसेप्ट इन अ लेमैन लैंग्वेज ओनली. नाउ रेगुलर प्रोग्रामिंग, जो भी हमारे बेसिकली स्टूडेंट्स कंप्यूटर फील्ड चूज करते हैं और अदरवाइज हु आर चूजिंग द डेटा साइंटिस्ट फील्ड और एनी फील्ड, बेसिक प्रोग्रामिंग तो सबको आई थिंक एक्सपोजर मिलता है करने का. जैसे कि इन उसमें क्या होता है, वी हैव टू गिव द इनपुट प्लस प्रोग्राम एंड दैट इज फाइनली output. This is our regular approach of programming, which we are following in the normal programming. But what in case of machine learning? And this input plus output is equal to program. This is in one case machine learning is more than this. उसमें क्या, कई बार आउटपुट नहीं भी अवेलेबल होता, सीधा इनपुट से भी हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है, राइट? तो ये डिफरेंस है रेगुलर प्रोग्रामिंग विद मशीन लर्निंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग. अगर हम बेसिक मशीन लर्निंग की टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड वन इज reinforcement learning. So in supervised learning, this is basically learning in the presence of teacher. Teacher is helping to learn how to behave with any kind of data. So here you can see that AI system is in supervised learning. AI system is presented with data which is labeled. So which means that every data is tagged with some correct label. This is under the supervision of some thing or some output. This is we called as a supervision. So in supervision learning, I'm quoting one example which will make you more clear. Hope everyone is using email in these days, right? So here you can see that we have initially taken some data, this data, and to that data we have marked as spam and not spam. Now that label data is used by the trained supervised model, which will help to train the model, जिसके बेसिस के ऊपर हम फर्दर इन्फर कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई न्यू केस आएगा कि वो मेरा स्पैम होगा कि नहीं होगा. Once my model will be trained, we can test our model by testing it on some new emails, which will check that it is able to predict right or not. अभी भी ऐसा होता होगा कि कई बार हमारी कुछ करेक्ट मेल होती है, वो हमारी स्पैम के अंदर चली जाती है ना. तो अभी भी क्या वो क्या 100% मशीन लर्निंग कभी भी करेक्शन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आउटलाइज रह जाते हैं. तो बट दिस इज अ बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग. नाउ कमिंग टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टीचिंग इन द एब्सेंस ऑफ टीचर. मीन्स इसमें वी आर नॉट हैविंग एनी आउटपुट, वी आर नॉट हैविंग एनी लेबल डेटा, जस्ट वी हैव टू सी द पैटर्न ऑफ द डेटा, अवेलेबल डेटा. उनके बेसिस के ऊपर ही हमने डिसीजन लेना है कि हमने किस तरीके से रिजल्ट निकालना है. तो इसकी मैं पहले बेसिक्स एग्जांपल लेता हूं, फिर हम टेक्निकल एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे. यू कैन सी सच टाइप ऑफ वेजिटेबल्स. कैन यू ग्रुप दीज थिंग्स? अगर मैंने इसको ग्रुपिंग करना होगा तो ये क्या है, आपको देख रहा होगा कि एक लेमन्स की फैमिली अलग से दिख रही है, एक चिलीज की फैमिली दिख रही है, एक ऑरेंज की फैमिली दिख रही है. तो अगर मैं इसको पैटर्न के बेसिस, अगर मैं अपनी नॉलेज के बेसिस के ऊपर उसको क्लस्टरिंग करूंगा तो वो क्लस्टरिंग मेरे 4 क्लस्टर बन जाएंगे. एक लेमन्स का अलग बन जाएगा, चिलीज का, ऑरेंजेस का. तो लाइक दिस ये मेरे क्लस्टर्स बन गए, 4 क्लस्टर. सो दिस इज अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Here you people are seeing that we have given some characters to our model, which are basically ducks and non-ducks. So in a training data, we don't provide any label, as we have already discussed. There is no label for this. But the unsupervised model, what it will do, it will separate both the characters by looking at the type of data, and model will able to analyze the structure, like which model will able to analyze the structure, like on from which class it is. So it will segregate the ducks as well as non-ducks on the basis of its characters. Clear? So this is the unsupervised learning. So the type of unsupervised learning is a clustering, which we have already discussed. Now the third one is a reinforcement learning. The very interesting learning this is. So the reinforcement learning is basically implemented on the concept of penalties and rewards. So it learns by interacting with the environment.
So in what is happening in this, the agent receiving the reward if it is performing the correct action. But similarly, on the other hand, we are also charging the penalty for performing the incorrect actions. From picture, I'm coming to the example afterwards. So the problem is basically minimizing and maximizing. So here in example, you are seeing that we are having an agent and giving two options. That is a path with the water and path with the fire. So in reinforcement learning, if the robot will go to the fire, what we will do, we have to charge the penalty, that is -50. If the robot will go to the first, it will go to the water, then we will give +50. But what we are here हम क्या देख रहे हैं, robot is approaching towards fire. So what we will do, we will give him a penalty of -50. तो अब उसके साथ उसको फीडबैक भी देंगे कि what you have to follow the next path. तो उसको जो फीडबैक हमने दिया उसको करेक्ट किया कि फर्स्ट यू हैव टू गो टू द वाटर. सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो पेनल्टी की वजह से वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा. तो एजेंट जब हम स्टार्टिंग से मूव करेंगे तो इट विल अप्रोच वाटर. सो दिस इज अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग. नाउ होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू, अब अच्छे से इसके अंडरस्टूड हो गए कंसेप्ट के थ्रू रेनफोर्समेंट, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड. So let's have a small quiz for you people. There is a first scenario. In first, you hope everyone is using Facebook, social networking site these days. So in what scenario one, Facebook is recognize your friend in a picture from an album of tagged photographs. So either it is supervised or unsupervised. Anyone please? Supervised. Perfect. Now how it is supervised? Because the person already know his friend, he already met him, so he knows he's my friend. Very good. Now actually there is a concept of tagging. You people are might be doing the tagging of photos of your friends, right, to recognize that person. तो Facebook क्या करता है, वो tagged photos को use करता है to recognize that person. So that tagged photo become the label of the picture, and we know that when the machine is learning from the label data, it is called as supervised learning. अब हम मूव करते हैं सिनेरियो 2 पे, जिसमें नेटफ्लिक्स हमें क्या करता है, जैसे जैसे हम मूवीज देखते जाते हैं वो हमें क्या करता है, हमें रिकमेंड करता जाता है मूवीज को. सो दिस इज सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड? Unsupervised. हाउ? Because he is observing some patterns कि हम कौन कौन सी मूवीज देख रहे हैं और उसके बेसिस पे he is making decisions. बट इसमें बट व्हाट वी आर हियर डूइंग, हम अपना एक डेटा दे भी तो रहे हैं ना. डेली हम जब मूवीज देख रहे हैं तो हम अपना डेटा भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं कि व्हाट आर आवर इंटरेस्ट, व्हाट आर आवर टेस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट ही इज रिकमेंडिंग सिमिलर मूवीज विद सिमिलर फीचर्स. सो दिस इज आल्सो अ सुपरवाइज्ड लर्निंग. मैं अभी और एग्जांपल्स भी आऊंगा सुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो तब आपको इसका और कंसेप्ट क्लियर होगा. थर्ड सिनेरियो लेके चलते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन. ठीक है, तो फ्रॉड डिटेक्शन में क्या है, लाइक इट इज एनालाइजिंग द बैंक डेटा फॉर सस्पिशियस लुकिंग ट्रांजैक्शन एंड वी विल फ्लैग दैट विच द ट्रांजैक्शन विल बी फ्रॉड. सो आइदर इट इज सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड. Sir, this is also a supervised learning. फ्रॉड अब कितने टाइप्स के फ्रॉड फिर भी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर ट्रेन कर लोगे. अब बैंक में क्या होता है, नॉर्मली आती है तो हम पॉसिबिलिटी नहीं होती ना, क्योंकि देयर आर एम्पल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू लेबल एज ए फ्रॉड और नॉट फ्रॉड. Okay, but sir, when we train the model, then we first also have to give some fraud input also. Exactly, we can implement on the basis of, but on very small scale. अगर हम लार्ज स्केल के ऊपर बात करेंगे then we have to implement clustering. Okay. Because there are some outliers which will be coming out on the basis of anomalous transactions. तो जैसे ही हमें कुछ anomalous behavior वहां पे दिखेगा कि हमारी normal transaction के नहीं हो रही, वो किसी तरीके का भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे कर देंगे, उसको हम अनसुपरवाइज्ड की कैटेगरी में ले लेंगे. अगर उसको हम स्मॉल स्केल के अंडर लेके आते हैं तो वी कैन डिफाइन एज अ supervised also. Clear? Yes. Now there are
two categories which I just forgot. I'm coming to again. We have discussed the learning that is a supervised learning. Supervised learning basically contains two types. First one is regression. Second is classification. These both categories comes under the category of supervised learning. Regression deals with the continuous value. Classification deals with the discrete values. अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी लेके बताता हूं. तो अगर मेरे पास वेदर फॉरकास्टिंग, आई हैव टू प्रेडिक्ट अ वेदर बिहेवियर और वी हैव टू प्रेडिक्ट अ प्राइस ऑफ अ हाउस. तो उसमें क्या होगा, जो मेरी वैल्यू है वो क्या चेंजिंग रहेगी, कॉन्टिन्यूस वैल्यू रहेगी. दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिग्रेशन. अगर मैंने कैंसर प्रेडिक्ट करना है कि आइदर इट इज अ बिनाइन और मलिग्नेंट, तो दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो इन केस ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन देयर आर टू क्लासेस. तो हमारे पास क्या डिस्क्रीट वैल्यू है, 0 या 1. वी कैन एक्सटेंड द बाइनरी क्लासिफिकेशन टू मल्टी क्लासिफिकेशन एज वेल. अगर मैंने कैंसर के और टाइप्स को लेके चलना है, अगर मैं उसके वायरड्स के ऊपर बात करूं 1 2 3 4 के क्लासिफिकेशन बेसिस पे करूं, तो मैं उसकी 4 क्लासेस लेके चल सकता हूं, 5 क्लासेस लेके चल सकता हूं. तो दैट प्रॉब्लम इज अ मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जिसमें मेरी 5 क्लासेस भी हो सकती है. दिस इज हाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग बिहेव्स. नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. So predicting the house based price based on the area of the house or based on the number of washrooms in the house. Second is the predicting the mileage of the vehicle based on the engine displacement. That will also variable. We can't categorize under classification. Third is predicting the acceleration of self-driving car. That is based on the slope of the road and some other features. So if we talk about the classification, in classification predicting the breast cancer, either it is a malignant or benign on the basis of test results. Second is predicting the spam emails, like either it will be of two category, either it will be a spam or non-spam. Third, predict if the brake needs to be applied for self-driving car based on obstacle. अब obstacle कितने भी तरह के हो सकते हैं, but final जो मेरी outcome होगी वो classification होगी either yes or no. Either brake will be applied or no brake will be applied. Now क्लस्टरिंग जैसे कि मैंने फ्रूट्स वाली एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की थी. अगर हम टेक्निकली एग्जांपल्स की लें तो फर्स्ट इज द ग्रुपिंग द न्यूज आर्टिकल बेस्ड ऑन द कंटेंट इन गूगल न्यूज. जैसे कि आप कुछ एक तरह की न्यूज सुनना चाहते हो तो आप देखते होगे कि आपको नेक्स्ट टाइम सिमिलर सजेशंस आती जाती है. तो दैट इज अ क्लस्टरिंग. सेकंड इज अ कस्टमर रिकमेंडेशन सिस्टम. थर्ड इज अ इमेज सेगमेंटेशन. दीज ऑल आई विल डिस्कस later on in the case studies of machine learning. Now this is email classification. Here people can see that apart from the segregation in spam and no spam, we are seeing that this time our Gmail is classifying into 3 categories. First one is a primary, second is social, and third one is promotions. तो ये अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर हो रही है? 3 तरह की क्लासेस में हो रही है. वो हमारा डेटा जैसे जैसे आ रहा है उनके बेसिस के ऊपर देख रहे हैं. जो इंपॉर्टेंट मेल्स आती है वो हमारी प्राइमरी कैटेगरीज में आती है. जो मोस्टली मेनी टाइम्स ब्रॉडकास्टेड होती है वो हमारी प्रमोशन के केसेस में आती है. सोशल उसके जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनके वर्ड्स के बेसिस के ऊपर एनालाइज करके वो सोशल के अंदर आती है. तो दिस इज वन ऑफ द ईमेल एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वी आर सीइंग इन दीस डेज इन Gmail. Second example is if you people are browsing for like मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मोहम्मद रफी साहब के मैंने गाने वहां पे प्ले किए. तो you can see on the right side that what YouTube is doing, he is recommending the similar songs to me, that ये songs भी उसी टोन के उसी टाइम के मैं लाइक कर सकता हूँ. तो यहाँ पे YouTube इंटेलिजेंट नहीं है, YouTube के बैकएंड के ऊपर मशीन लर्निंग वर्क कर रही है which makes YouTube इंटेलिजेंट. तो आपको देखते होगे कि फेसबुक में आपको फ्रेंड की सजेशन आ जाती है, यू पीपल यू में नो में. तो दिस दैट ऑल क्या पीछे मशीन लर्निंग प्ले कर रही है. नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस बिहाइंड द मशीन लर्निंग? दैट इज इनपुट डेटा with output. After that, pattern mining. If the data will be without output, it will also solved with the help of pattern mining. Then we will give to some machine learning model. Now what is model? यहीं पे हमारी सारी स्टोरी आती है. मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन होती है, वो यहाँ पे मॉडल पे होती है. और वो मॉडल कैसे एग्जीक्यूट करता है?
देयर आर थाउजेंड्स, मोर देन 1000 नंबर ऑफ मॉडल्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, मशीन लर्निंग जो हमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के बेसिस पे कंप्यूट करती है. तो दैट प्रोसेस बेसिकली गिव द प्रेडिक्टेड आउटपुट, न्यू डाटा. तो उस मॉडल को कैसे प्रोसेस करते हैं, मैं 3-4 बेसिक मॉडल्स जो आपके हैं वो डिस्कस भी करूंगा, ताकि आप थोड़ा सा और लिटरेट हो जाओ मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉडल मेरा ऑपरेट करता है कैसे. वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करूंगा. नाउ व्हेन कैन वी यूज मशीन लर्निंग? नाउ हियर वी कैन सी दैट when you have a data set with some pattern that associate the input to the output, तो वो हमारी ऑब्वियसली सुपरवाइज्ड होगी, इनपुट भी है मेरे पास, आउटपुट भी है. सेकंड मशीन लर्निंग मेरी कब काम आती है? जब हमारे पास इतने रूल्स है, हमारे पास ऐसा पॉसिबल कंडीशन नहीं है कि हम ऑल रूल्स को कोड कर पाए. हम अगर जैसे कि हमने फ्रॉड डिटेक्शन की एग्जांपल की थी, अब देयर हैविंग सम केसेस ऑफ फ्रॉड्स, अगर उसका स्कोप क्या है, एक लिमिटेड है, then we can code that rules. But if the scope is unlimited, then where the machine learning plays roles. So can you list all the rules that determine if the email is spam? क्योंकि हर डेली तरह से कोई ना कोई नई ईमेल आ जाती है, तो उस केस के अंदर हमें मशीन लर्निंग अप्लाई करनी पड़ती है. थर्ड, when the scale is massive. Similarly, अगर हमारे पास लैक्स के अंदर डेटा है, तो लैक्स डेटा के लिए रूल्स कोड करना डिफिकल्ट है. On that case we are applying a machine learning. तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे मशीन लर्निंग में क्या उसका पॉजिटिव बैकग्राउंड क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है जितना ज्यादा होगा उतना ही मशीन लर्निंग हमारा अच्छा मॉडल ट्रेन करता है. If we are having a data in lakhs, then also our machine learning plays well to predict a valid output. तो उसके लिए आजकल जो मेन कंसेप्ट चल रहा है, that is a deep learning, which is a exaggerated version of neural network. I will discuss neural network later on. Now where do we use data science in our daily lives? अगर हम डेली लाइफ्स के अंदर बात करें, गूगल के आप कुछ सर्च करते हो तो वो सारे आर्टिकल्स, उसके रेलेवेंट आर्टिकल्स फेच करके साथ में दे देता है. फेसबुक मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे पीपल यू में नो के अंदर आप रिकमेंडर सिस्टम, वॉइस, चेस, EI बेस्ड चेस रिसेंटली बीटेड गैरी कैस्पर, न्यूज हमने सुनी थी लास्ट ईयर्स में आई थी पेपर में. फ्रॉड अलर्ट, self-driving car. This is the some example where we are using machine learning or data science. So these are also some applications. Now let's discuss the data set. How data set behave a role. तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैंसर डेटा सेट की. तो you can see here that there is a clump thickness, cell size, cell shape, bar nuclei. These all are the independent variables. इनकी कोई एंड देयर इज अ वन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज अ क्लास टारगेट, जो कि बता रहा है कि जो मेरा कैंसर है दैट इज अ बेनाइन और मैलिग्नेंट. वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो मेरा फीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मैं आपको डेटा सेट अभी दिखाता हूं, जस्ट वेट. ब्रेस्ट कैंसर, होप माय स्क्रीन इज विजिबल, एक्सेल शीट इज विजिबल. Yes, sir. तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी है. टोटल 700 पेशेंट्स की हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज है. तो दिस इज अ डेटा सेट विच इज डोनेटेड बाय सम हॉस्पिटल. मैं आपको बताऊंगा कि डेटा सेट आपको मिल भी कहां से सकता है. तो हियर वी कैन सी दैट क्लम्प थिकनेस, सेल साइज, सेल शेप, मार्जिनल, तो ये सारे मेरे इनपुट फीचर्स है. देयर इज अ वन आउटपुट फीचर दैट इज अ कैंसर विच इज टेलिंग दैट आइदर द कैंसर इज मैलिग्नेंट विच इज क्लासिफाइड एज अ 1 और आइदर इट इज अ बेनाइन विच इज क्लासिफाइड एज अ 0. तो ये जो 1 0 हमारी तरफ से ही की जाएगी, हमें पता होगा कि कौन सा हमने मैलिग्नेंट को 1 से रिप्रेजेंट किया, 0 से हमने. अगर हमने कैंसर को दिखाना है कि कैंसर के कितने, कौन से और सिवियरिटी टाइप का कैंसर है, तब ये डेटा सेट काम नहीं आएगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा सेट उसके अकॉर्डिंगली ही बनाना पड़ेगा. नाउ आई एम गिविंग वन मोर स्टेटमेंट दैट मशीन लर्निंग इज नॉट 100% करेक्ट. तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? एनीवन? कोई बता सकता है? So please repeat the question. मैं अभी एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मशीन लर्निंग इज नॉट 100% करेक्ट. तो फिर इन चीजों का बेनिफिट क्या है? इसमें हमें ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्ट करने का क्या फायदा है? So because Sir, actually what happens is we have
a lack of trained doctors. So for minor cases or at low level, when there is no severity of disease, we can handle small things at expert systems and with machine learning systems. वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम नॉर्मल सिस्टम्स के लिए, नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए वी कैन अप्रोच एक्सपर्ट सिस्टम। इन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, बट अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर के सिनेरियो की बात करूं, इन चीजों में एक्सपर्ट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए हमेशा। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वन कैंप, तो हमने क्या किया वहां पे जो हमारे पेशेंट का था वो अराउंड अबाउट 500 पेशेंट का अरेंजमेंट किया था पर डे के लिए। तो बट उस दिन क्या हुआ, 1000 पेशेंट अप्रोच ऑन द साइट। तो व्हाट वी विल डू, इफ वी आर हैविंग सम बेसिक फीचर्स, तो हम उनका फीचर्स क्या करेंगे, एमएल मॉडल के बेसिस पे डालेंगे। तो उसमें हम देख लेंगे कि कौन से पेशेंट्स हमारे मिलिग्नेंट बता रहा है, कौन से बिनाइन बता रहा है। तो हम अपनी फर्स्ट 500 उन 1000 में से वो वाले टारगेट करेंगे जो मेरे मशीन लर्निंग ने प्रिडिक्ट किए हैं। तो जस्ट टू प्रायोरिटाइज द जॉब वी कैन यूज द मशीन लर्निंग। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करता है वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम इन चीजों को कहाँ पे यूज करते हैं, टू प्रायोरिटाइज द जॉब। तो जो मेरे पेशेंट मेरा मशीन लर्निंग वाला बताएगा, अगर वो मैं 1000 को 1 बाय 1 चेक करने लगा, तो क्या पता बस फर्स्ट 500 के अंदर 400 मेरे इनकरेक्ट केसेस हो, जो बिल्कुल ठीक हो, तो 100 ही मेरे मिलिग्नेंट हो। बट अगर मैं एमएल बेस्ड पे जाऊंगा, अगर मेरा मशीन लर्निंग 95% एक्यूरेट है, तो उसमें क्या सिर्फ 30, 40, 50 पेशेंट्स का होगा कि जो मिसमैच हो सकते हैं, वरना 490, 480, 450 के अराउंड अबाउट जो पेशेंट्स है वो हम सही टारगेट करेंगे, वेयर द मशीन लर्निंग प्लेज रोल। नाउ सेकेंड इज हाउ क्लस्टरिंग विल हेल्प। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कैंसर डेटा सेट के अंदर मेरे पास टारगेट वेरिएबल है, बट अगर मैं यहाँ पे टारगेट वेरिएबल को हटा दूं, हियर क्लस्टरिंग विल प्ले रोल। तो यहाँ पे हम क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम रन करेंगे, तो वो उसमें ग्रुपिंग करेंगे 2 क्लासेस के अंदर कि कौन से में बिनाइन हो सकते हैं, कौन से मिलिग्नेंट हो सकते हैं। ऑब्वियसली सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी, वो अच्छा परफॉर्म करेगी, पर अगर हमारे पास आउटपुट ही नहीं है, देयर वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। नाउ लेट्स एक्सप्लोर वन मोर डेटा सेट, वाइन डेटा सेट। वाइन डेटा सेट यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वाइन का डेटा सेट की जो एंट्रीज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4900 एंट्रीज। तो यहाँ पे आप वाइन की क्वालिटी क्या है, दिस इज डेटा सेट इज बेसिकली टू प्रिडिक्ट द क्वालिटी ऑफ वाइन। द क्वालिटी ऑफ वाइन, दिस इज अ डिपेंडेंट फीचर क्लास टारगेट वेरिएबल। क्वालिटी वेरीज फ्रॉम 1 to 10। तो जो 10 है मेरी वो हाईएस्ट क्वालिटी रहेगी, जो मेरी 1 है वो मेरी लोएस्ट क्वालिटी है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरियस फीचर्स के बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को जो मेरी वाइन की क्वालिटी है वो क्या है। अब यहाँ पे वाइन की क्वालिटी जो हमने फर्स्ट टाइम पता करनी होगी, वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि डोमेन एक्सपर्ट के बिना तो हम कर नहीं पाएंगे। खुद एक बार जब हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट का डेटा आ गया, तो अब उसको लर्न करने के लिए एक बार तो हमें डोमेन एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। बट वो क्या, हमारी वाइन भी टेस्ट कर जाएगा, सब कुछ कर जाएगा, बट हमारे पास क्या छोड़ गया, हमारे पास डेटा छोड़ गया। तो उस डेटा सेट को हम क्या फर्दर यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो अभी मैं एक और डेटा सेट की एग्जांपल लूंगा, माय फेवरेट टॉपिक दैट इज द ड्रग सिनर्जी। आई विल शेयर द डेटा सेट, दिस इज माय डॉक्टरेट्स टॉपिक। सो हियर अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस की है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम डिस्कस किया है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे जो मेरा आउटकम वेरिएबल था वो क्या था, सिनर्जी स्कोर। अब ड्रग सिनर्जी क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट व्हेन वी आर कंबाइनिंग 2 ड्रग्स। दैट इफेक्ट कैन बी सिनर्जेटिक, दैट कैन बी एंटीगोनिक, दैट कैन बी अ additive. Now what these effects are, like if the efficiency of drug is 50% and the efficiency of drug B is 50%, if we are combining both, then the overall effect increase to 70 to 80%, then that effect is a synergetic. If the overall effect is reduced to 30%, 20%, 35%, that is the antigonic. If the equivalent effect, overall effect is equivalent to given drugs, individual drugs, that is 50-50 and overall is also 50, that is the additive effect. So what these do, this was predicted in synergy score. तो मेरा मतलब अगर मैं 2 ड्रग्स को कंबाइन कर रहा हूं तो उसमें मेरा कितना सिनर्जेटिक है। अब यहाँ पे आप बेनिफिट देखिए, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 ड्रग्स है, ठीक है, अब मैं अगर 50 ड्रग्स का आपस में कॉम्बिनेशन बनाऊं, 1 को 2 के साथ कंबाइन करके देखा, 1 को 3 करके देखा,
तो अगर मैं 50 के कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनाऊं तो मेरे पास, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करता हूं, आई थिंक इट इज टेकिंग अराउंड अबाउट 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ कि 1 साल लग जाता है कि हम अगर उसको पूरी वैलिडेशन करते हैं। तो अगर मेरे पास 50 ड्रग्स है, 50 ड्रग्स के मैं अगर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करूंगा तो उस केस के अंदर मेरे जो ड्रग्स है कितना कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो कितने ईयर्स लग जाएंगे? एनीवन प्लीज? अगर मैं 50 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में फाइंड आउट करता हूं, तो कितने हो जाएंगे? मैनी ईयर्स। तो इतने सालों तक हम क्या वेट करते रहेंगे? तो अगर मैं मशीन लर्निंग में ऑलरेडी जो ट्रेन डेटा सेट है उसके बेसिस के ऊपर मैं फाइंड आउट कर लूं कि दीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली मेरे को वैलिडेशन करने के लिए लैब एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, बट we can at least see on the basis of the data set कि which drug can be a synergetic, more synergetic and give benefit to the society. So टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं पहले उस ड्रग्स को ही टारगेट करूंगा जिनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो मेरा अच्छी प्रेडिक्शन देंगे. सो दिस इज अ रिग्रेशन बेस्ड स्कोर. सो अब एक मैंने डैम को टेस्ट करना है, तो अगर मैं डैम को टेस्ट करना है और इसको मैं इसकी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको तोड़ के चेक कर सकता हूं? इट इज वेरी डिफिकल्ट. नो सर. ना, तो काफी मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इस डैम की स्ट्रेंथ अब चेक करूंगा. तो हाउ आई कैन चेक इन अ सिमुलेशन एनवायरनमेंट. तो उसके लिए मेरे को क्या फीचर्स देखने पड़ेंगे? हाइट ऑफ द वॉल, है ना, हाइट कितनी है वॉल की, विड्थ कितनी वॉल है, कितनी वाटर क्वांटिटी है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज, वाटर फ्लो कितना है, गेट्स कितने हैं. तो इन फीचर्स के बेसिस के ऊपर हम फाइनली चेक कर पाएंगे कि मेरी डैम की स्ट्रेंथ कितनी है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने एल्गोरिदम सिमुलेशन एनवायरनमेंट में इसकी चेक कर सकते हैं दैट वी कैन, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर देंगे तो क्या वो सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा. नाउ देयर आर सम मशीन लर्निंग मॉडल्स, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, लीनियर मॉडल, न्यूरल नेटवर्क, के नियरेस्ट नेबर. सबसे पहले मैं के नियरेस्ट नेबर आपको बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट पता चलता जाएगा आपको. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक, यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डॉट्स. तो अगर यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन देखूं कि मेरे पास एक नई वैल्यू यहाँ पे आया स्केयर, तो उसको मैं कौन सी क्लास में करूंगा? स्केयर ऑब्वियसली इस साइड है तो वो स्टार की क्लास में जाएगा. अगर स्केयर मेरा यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली वो कौन सी क्लास में जाएगा? डॉट्स की क्लास में जाएगा. अगर मेरा स्केयर आ गया यहाँ पे, नाउ इट इज एम्बिगियस टू डिसाइड that this will belong to either a star class or dot class. Now what we will do, k nearest neighbor. तो ये k की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं रन टाइम के ऊपर. फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ k is 3. तो what we have to do, we have to choose 3 nearest neighbor of this square. अगर मैं 3 nearest neighbor देखूं तो ये वाले आ जाएंगे 3 nearest neighbor. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 वोटिंग किसकी है? स्टार्स की है, 1 2, डॉट की एक ही है. तो दिस स्क्वायर विल गो इनटू दिस क्लास. दिस इज हाउ के नियरेस्ट नेबर वर्क्स. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका आ जाता है लीनियर मॉडल. लीनियर मॉडल में जैसे आपने बेंगलुरु का टेम्परेचर वाला मैंने केस स्टडी लिया था, उसमें आप देख रहे थे, तो उसमें मेरी जो लीनियरली ग्राफ ऐसे इंक्रीज करता है, उसमें हम क्या करते हैं? लीनियर मॉडल करते हैं. इसमें जो W1, W2, 3, 4, 5 है, ये मेरे ऑप्टिमाइज्ड वेट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं फाइनली आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए. तो इनको हम किसी एल्गोरिदम के थ्रू निकालते हैं. एंड दीज x1, x2, x3, x4 एंड x5 आर माय इनपुट फीचर्स. तो ये जो फीचर्स हमने देखा था ना ब्रेस्ट कैंसर के डेटा सेट के ऊपर, डायरेक्ट एनर्जी के ऊपर, IC50 वैल्यू, IC20 वैल्यू, दैट ऑल आर माय इनपुट फीचर्स, x1, x2, x3, x4. इसकी मैं एक अभी एग्जांपल डिस्कस करता हूँ. दिस इज अ ट्री बेस्ड मॉडल. ये एक जनरलाइज्ड हम रूल बेस्ड कंप्यूटेशन परफॉर्म कर लेते हैं. नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क वर्क सिमिलर टू आवर ब्रेन. तो इसमें क्या है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें हमने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं विच कंटेन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. सो दिस इज द हिडन लेयर. एज अब आपने सुना होगा डीप लर्निंग का कंसेप्ट. वो डीप लर्निंग कैसे इंप्लीमेंट होती है? जब व्हेन वी आर इंक्रीजिंग दिस नंबर ऑफ हिडन लेयर्स by using some optimized activation function, that is a basically deep learning. कुछ नहीं है, that is a
स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, उसमें हम क्या उस मॉडल को डीपली ट्रेन कर देते हैं। तो वो हमारा इनपुट, हिडन वेरिएबल्स और फिर मेरा आउटपुट। तो वो बैकवर्ड प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन काफी इस पे लेंथी टॉपिक है, उसको हम फिर कभी टाइम मिला तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। राइट, नेक्स्ट इज बेसिक आइडिया हमारा क्या रहता है मशीन लर्निंग में। एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट हम देते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हैं और उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो अभी मैं एक आपको लीनियर मॉडल से प्रिडिक्शन करके दिखाता हूँ कैसे लीनियर मॉडल से प्रिडिक्शन होती है। तो दिस इज माय अवेलेबल डेटा सेट, ऑलरेडी अवेलेबल। 4 फीचर था मेरे, x1 x2 x3 x4। अब इसके साथ मेरे को चाहिए क्या, वेट्स चाहिए, w1 w2 w3 w4। ये इक्वेशन में हमने देखा था। और वो वेट्स मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्गोरिथम ले लिया, लीस्ट सम ऑफ स्क्वायर्स। तो लीस्ट सम ऑफ स्क्वायर कैसे काम करता है, जो मेरे पास गिवन डेटा है उनको मैं क्या करता हूँ, मॉडल पे ट्रेनिंग करता हूँ। अब ये तो मेरा ट्रेंड हो गया, और एक मेरा क्या आएगा, आउटपुट प्रेडिक्टेड। ये मेरी एक्चुअल आउटपुट है, ये मेरी प्रेडिक्टेड आउटपुट है। तो प्रेडिक्टेड आउटपुट फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे 24 आ गई, ये 21 आ गई, 26 आ गई। तो पहले मैंने क्या किया, एक्चुअल का ग्राफ जनरेट कर लिया, एक साइड एक्चुअल कर लिया, एक साइड मैंने प्रेडिक्टेड कर लिया। और जब मैंने एक साइड मैंने क्या कर दिया, प्रेडिक्टेड के डॉट्स ड्रा कर दिए। तो इनमें जो डिफरेंस होगा एक्चुअल में, दैट इज जिसमें मेरे को मिनिमम डिफरेंस मिलेगा, उनके बेसिस के ऊपर मैं वेट्स की वैल्यू डिसाइड कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने जब ये कैलकुलेशन की तो मेरे पास जो बेस्ट W1 W2 W3 W4 की वैल्यू आ गई 9, 6, -10 एंड 5। नाउ अगर मेरे पास अब न्यू इनपुट आ गया विदाउट आउटपुट, दैट इज अगर मेरी x1 की 3, 4, 2, 2 वैल्यूज है और वो मेरे जो ऑलरेडी गिवन डेटा सेट है उसके अंदर नहीं है, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी। तो मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास गिवन डेटा सेट था उससे मैंने W1 W2 W3 W4 की वैल्यू ले ली है। तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा 41। दिस इज हाउ लीनियर मॉडल वर्क्स। नाउ एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट के बेसिस के ऊपर अगर मैं डिसीजन ट्री की बात करूं, तो डिसीजन ट्री रूल बेस्ड अपने आप डिसीजन ट्री बैकएंड पे वो डेटा को एनालाइज करके पैटर्न करके एक डिसीजन को कोड्स कर लेता है जनरलाइज्ड वे में। तो उसको कैसे रिजल्ट निकालता है, अगर x1 3 है, अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड जाता है, राइट है तो ग्रेटर है तो राइट साइड जाता है। अब x1 की वैल्यू 3 है तो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड, दिस साइड। नाउ x2 की वैल्यू क्या है, 4। अब 4 क्या है, ग्रेटर देन 2, तो वो किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। ठीक है। अब x3 की वैल्यू क्या है, 2। अब ग्रेटर देन 2 तो राइट है, पर हमारे पास x3 2 है तो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो आंसर इज 0। दिस इज हाउ आवर मशीन लर्निंग मॉडल्स वर्क्स। तो हम इनकी सैम्पलिंग भी कर सकते हैं वेरियस डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स की। वो काफी एडवांस टॉपिक्स है, पहले हमें सिर्फ ये देखना कि बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल क्या करते हैं। और ये मैंने जस्ट आपको इसका मैथमेटिक्स हल्का सा बताया है, ये भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द आपको यूजर इंटरफेसेस मिल जाते हैं जिसमें ये जो मॉडल है इनबिल्ट होते हैं। जस्ट यू हैव टू अपलोड योर डेटा सेट और फाइनल आपको प्रेडिक्शन आ जाती है। तो मैं इसका जनरल स्टेप्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा कलेक्शन। हमारे इंडियन सिनेरियो के अंदर जो डेटा प्रैक्टिस में एक वीक पॉइंट क्या, हम डेटा कलेक्शन में थोड़े से वीक रहते हैं। अगर हम प्रॉपरली डेटा सेट कलेक्ट कर जाएं तो उससे हम बहुत अच्छी इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। आफ्टर क्लीनिंग द डेटा, सेकंड इज डेटा क्लीन अप, third one I'll quote one example. I'm recently working with one of the epilepsy project in Dr. Sahu in PGI. तो उसमें हमने क्या कर रहे हैं कि उसमें काफी तरह का स्कोर निकालते हैं हम। तो अगर वो स्कोर हम मैनुअली निकालने लग जाएं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो हम उन्होंने क्या एक डेटा सेट कलेक्ट किया 1 ईयर का। तो उस 1 ईयर के डेटा सेट के ऊपर हमारे पास कोई नया पेशेंट आएगा तो उसका हम वो कैसे उसका रहन सहन है, किस तरीके की उसकी हेल्थ कंडीशन आगे रहेगी, फ्यूचरिस्टिक कैसे रहेगा, सीजर कितनी देर तक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली पेशेंट सीजर वाले को पूछता है कि हमारा बच्चा कितनी देर तक रहेगा या कितनी देर तक इसको सीजर नहीं आएगा। तो वो चीजें हम उनके बेसिस के ऊपर उनको डिसीजन दे सकते हैं। डेटा क्लीन अप एंड डेटा प्रिपरेशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली डेटा क्लीनिंग। तो इसमें कुछ क्या एंट्रीज मिसिंग होती है तो उनको हम एवरेजिंग के बेसिस के ऊपर हम कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप इज अ मॉडल प्लानिंग थ्रू विजुअलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। आफ्टर प्लानिंग द मॉडल, यहीं पे हम डिसाइड करते हैं दैट मॉडल विल आइदर गो टू द क्लस्टरिंग मॉडल और रिग्रेशन मॉडल और क्लासिफिकेशन मॉडल। देन द फाइनल स्टेप इज द मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग करने के बाद वी आर परफॉर्मिंग आर वैलिडेशन
different types of two types of validation. We are also performing a validation with the machine learning perspective. तो इसमें k क्रॉस वैलिडेशन होती है, तो 1 क्रॉस वैलिडेशन, 10 क्रॉस वैलिडेशन, n नंबर ऑफ क्रॉस वैलिडेशन कैन बी देयर. तो इस पे भी एक अलग टॉपिक काफी टाइम हो जाएगा, तो जस्ट यू नीड टू लर्न वैलिडेशन, तो उसको हम बाद में कभी फिर डिस्कस कर लेंगे. फाइनली द एंड प्रोडक्ट्स प्रोडक्टाइजेशन. तो प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ द मशीन लर्निंग. तो उसको अगर हम हार्डवेयर के अंदर यूज करते हैं तो वी कैन इंटीग्रेट इन आर्डिनो और रास्पबेरी पाई. नॉर्मली हम एक वेब पोर्टल के अंदर भी दे सकते हैं जहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज इनपुट करूं, उस पे मेरे को आउटपुट मिल जाए. तो दिस इज द मेन स्टेप्स विच वी आर यूजिंग इन मशीन लर्निंग. Now, what skills are needed for machine learning to become a data scientist? Basic mathematics, just a basic mathematics required. Normal programming, and third one is the domain expertise. अगर हमारे पास domain expertise नहीं होगा तो हमारे पास उस domain का data नहीं होगा, तो उसके बिना वो data के machine learning की prediction को हम rely नहीं कर सकते. So this is the main 3 skills which is required for this thing. Now, where to get the data sets? अब data set हम कहाँ से ले, अगर मैंने एक्सप्लोर करना अभी इसके बाद कि मेरे पास कौन कौन से डेटा सेट है, तो आई विल गिव यू द लिंक. जस्ट यू नीड टू गूगल पे आपने जाना, उस पर टाइप करना है यूसीआई डेटा सेट. यूसीआई डेटा सेट, तो इसमें आपको क्या होगा, काफी सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे अलोंग विद द डेटा सेट. उस डेटा सेट को यूज करके कौन कौन से रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट. तो वो आपको बताएगा भी कि जो प्रॉब्लम है वो मेरी क्लासिफिकेशन है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्लस्टर बेस्ड है, मल्टीवेरिएट है कि मेरी सिंगल वेरिएट है, एट्रीब्यूट्स कितने हैं, सब कुछ उसमें गिवन है. सेकंड इज कैगल के ऊपर भी आप जा सकते हो. अभी कोविड आईआईटी कानपुर ने एक नई डिवाइस प्रपोज की है, दैट इज एक्सरे इमेज बेस्ड. हमने कोविड का जो डिटेक्शन सिस्टम है वो प्रपोज किया हुआ है, जो हम बता देते हैं कि उसको कोविड है कि नहीं है. तो वो कॉस्ट कितना करता है, 100 रुपीज. तो उसमें क्या, हमने भी एक रिसर्च पेपर किया था, तो उसमें हमने क्या था, जो लीजन्स होती हैं हमारे चेस्ट के अंदर, उस पे हम इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेस करके बता सकते हैं. हमारा जो नॉर्मल टेस्ट होता है, आई थिंक इट इज टेकिंग अराउंड अबाउट 1 डे फॉर रिजल्ट. तो इसमें क्या होता है, हमने सिर्फ उसका एक्सरे लिया, तो उसके चेस्ट में कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे किस तरीके से कितने लीजन्स क्रिएट है, उसके बेसिस के ऊपर सिविरिटी बेस्ड हम उसको बता सकते हैं कि उसको कोविड है कि नहीं है. तो दिस इज अ कैगल. थर्ड, आप गूगल डेटा सेट्स. अब जैसे आपका नॉर्मल गूगल है, ऐसे आपका एक गूगल डेटा सेट्स भी है, उस पर भी आप डेटा सेट एक्सप्लोर कर सकते हो. तो दीज आर द वेरियस UCI रिपोजिटरीज. नाउ ML केस स्टडीज, आई विल क्विकली, टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो मैं जल्दी से रिकैप करूंगा. फर्स्ट इज प्रेडिक्टिंग अ हाउस प्राइस. अगर मेरे पास हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ हाउस साइज, और इसके साथ अगर मैं बीच में और फीचर्स ले लूंगा, नंबर ऑफ वॉशरूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स, कई बार कंपैक्ट बनाए होते हैं, और लोकेशन, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन. तो वो हमारा क्या है, फाइनल प्रेडिक्शन रहेगी, प्रेडिक्टिंग अ हाउस प्राइस. सेकंड केस स्टडी इज अ सेंटीमेंट एनालिसिस. नाउ you people might be knowing that lot of data is generated through Twitter ना. तो ट्विटर में हमारा क्या होता है कि बहुत सारा डेटा जनरेट होता है. अब अभी किसी रेस्टोरेंट की रेटिंग्स हमने देखनी हो तो उनके कमेंट्स के बेसिस के ऊपर कर देते हैं. तो जैसे कि ये मेरे कमेंट्स है, कमेंट्स को हम क्या करते हैं, उनके सेंटीमेंट्स, उन वर्ड्स को प्रोसेस करके, that it comes under the category of natural language processing, which is a branch of machine learning. तो उनके बेसिस रिव्यूज के ऊपर हम कितने माइनस नेगेटिव वर्ड्स है, कितने पॉजिटिव वर्ड्स है, कितने प्लस थंब है, कितने नेगेटिव थंब्स है, उसके बेसिस के ऊपर हम उसकी रेटिंग कर देते हैं. तो दैट इज द सेंटीमेंट एनालिसिस. थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट रिट्राइवल. इफ यू पीपल आर लाइकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स न्यूज, अगर आपने क्रिकेट की न्यूज देखा तो वो आपको साथ में सजेस्ट करने लग जाएगा अदर फील्ड्स आल्सो, बास्केटबॉल में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है. तो दिस इज अ क्लस्टरिंग. फोर्थ वन इज द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. अगर आप कोई भी अपने चाइल्ड के लिए या किसी के लिए भी कुछ Amazon पे कुछ भी परचेज करते हो, तो यू आर सेइंग दैट उसमें क्या एक मैट्रिक बेस्ड क्या होता है, वो आपको रिकमेंड करने लग जाता है कि यू कैन बाय दिस आल्सो. तो वो उसमें उसके पास हिस्ट्री जनरेट होती है कि जो यूजर्स होते हैं वो यूजर्स एक्चुअल में क्या क्या बाय करते हैं, अगर ये बाय करते हैं तो उसके साथ क्या बाय करते हैं. तो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, इसके पीछे भी क्या मशीन लर्निंग काम करती है. द केस स्टडी फिफ्थ इज द विजुअल प्रोडक्ट रिकमेंडर. तो विजुअल प्रोडक्ट रिकमेंडर इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग. तो आप देखते हो अगर उसमें इनपुट इमेज जब आपने कुछ सिलेक्ट किया तो उसके सिमिलर टाइप्स के जो भी होते हैं शूज, अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके सिमिलर टाइप ऑफ शूज भी आपको नीचे दिखाने लग जाता है. फ्लिपकार्ट के अगर आपने एक्सप्लोर किया हो, Amazon पे देखा हो, तो वो नियरेस्ट नेबर जो भी होते हैं वो अपने डीप लर्निंग के थ्रू आपको रिट्राइव करने लग जाता है. तो दिस इज द मेन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मशीन लर्निंग. इफ यू पीपल आर हैविंग एनी क्वेरीज यू मे आस्क.
there is one assignment for you people. Just search 5 data set of your domain और उसमें आप देखो कि उसमें से डेटा सेट में आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो. कई बार क्या होता है, एक चीज प्रिडिक्ट की होती है तो उसके साथ कुछ और भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, because there can be more dependent variables. So 5 data set सर्च करके उसमें क्या प्रिडिक्ट करना उसको आप एक बार एक्सप्लोर करना. If you people are having any queries, you can contact me. This is my email ID and contact numbers. So that's all from my side. Yes. Thank you so much, sir, for sharing a lot of information in a short period of time. Your remarks will trigger a lot of ideas in our mind. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Yeah, students, I have an announcement that our next lecture will be on next Saturday, and the timings will be the same. And the topic is cybersecurity. All the details will be shared via mail and via broadcast too. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.